ऊपर जो किया जस्ट रीड वंस, इंपॉर्टेंट है बट याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड वंस। ये याद करने वाली चीज है, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। Parts of a table. Preparation of a table is an art which needs an expert handling of data. To construct a table, it is important to understand the parts of a good statistical table. When all these parts are put together in a systematically ordered manner, it forms a table. A good table should essentially have the following parts. Number one, table number. होता ना, टेबल नंबर 4.6, 5.13, टेबल नंबर. Each table should be numbered for easy identification and further reference. पैराग्राफ में लिखा होता है as per table 5.6 figure 3.4, तो उसको बोल रहे हैं टेबल नंबर. रेफरेंस इजी हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाती है. When there are many tables, then these tables should be numbered in a logical sequence. The table number may be given on the top of the table or at the beginning of the title of the table. फिर आप इसको टॉप पे भी दे सकते हो, जहां आपने टाइटल दे रखा है वहां पे भी दे सकते हो. Subscripted numbers like 1.1, 1.2, 2.1, they are also in use for identifying the table according to its location. For example, table number 5.1 is read as the फर्स्ट टेबल ऑफ 5th चैप्टर. उसमें फिर क्या हो जाएंगे, सब्सिक्वेंटली 5.2, 5.3 5th चैप्टर की टेबल्स आ गई. तो पार्ट्स ऑफ अ टेबल, नंबर 1 टेबल नंबर, नंबर 2 टाइटल. अ सुटेबल टाइटल शुड अकम्पनी एवरी टेबल. टाइटल इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ टेबल. द टाइटल शुड बी क्लियर. द टाइटल शुड बी क्लियर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी and free from any ambiguity. कोई confusion ना create करे. A title should be brief and should be placed in a prominent place, usually below the table number. In some cases, it becomes desirable to use a long title for the sake of clarity. In these situations, a catch title may be given above the main title. कभी होता ना आपका लंबा चौड़ा टाइटल है, कह रहे तो आप ऐसा करो कि एक शॉर्ट सा कैश टाइटल बना दो, उसके नीचे आपने एक्सप्लेनेशन देनी है. अगर उसके बिना आप नहीं समझा पाएंगे कि क्या है, तो कैश टाइटल भी बनाओ और मेन टाइटल भी बनाओ. कैश टाइटल, कैची, आई कैचिंग. फॉर एग्जांपल, द फर्म्स नेम may appear as a catch title and what is contained in the table may come thereafter. Contents of the title. Title should contain the following information. नेचर ऑफ डेटा क्या है, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट मैटर क्या है, प्लेस टू विच द डेटा रिलेट्स, टाइम टू विच द डेटा रिलेट्स, सोर्स ऑफ डेटा, रेफरेंस ऑफ द डेटा इफ अवेलेबल. तो कंटेंट्स ऑफ द टाइटल, ये सब टाइटल का पार्ट माने जाते हैं. तो नंबर 1 टेबल नंबर, नंबर 2 टाइटल, नंबर 3 ये मजेदार पॉइंट है, टर्म इंपॉर्टेंट है, कैप्शंस एंड स्टब्स. कॉलम की हेडिंग को क्या बोला जाता है, कैप्शन. रो की हेडिंग को क्या बोला जाता है, स्टब. कैप्शंस और कॉलम हेडिंग्स. एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम इन अ टेबल, अ कॉलम डेजिग्नेशन इज गिवन टू एक्सप्लेन फिगर्स ऑफ द कॉलम. दिस इज कॉल्ड कैप्शन और अ कॉलम हेडिंग. हर एक कॉलम के ऊपर जो है ना, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, टॉप पे जो लिखा होता है कॉलम हेडिंग कहते हैं उसे. कॉलम हेडिंग का टेक्निकल नेम क्या होता है, कैप्शन. कैप्शन रेफर्स टू द हेडिंग्स और डेजिग्नेशंस ऑफ वर्टिकल कॉलम्स. वर्टिकल कॉलम्स. Captions are generally written in the mid of the column in small letters to occupy less space. Stubs. कैप्शन कॉलम हेडिंग को बोलते हैं, स्टब्स रो हेडिंग को बोलते हैं, रोज. Like a caption or a column heading, each row of the table has to be given a heading. Stubs refer to the headings of horizontal rows. A brief description of the row heading may also be given at the left hand top of the table. More about captions and stubs. Two or more columns
or rows with similar headings may be grouped under a common heading to avoid repetition. Such arrangements are called sub captions or sub stubs. कह रहे जो captions हैं उसके अंदर भी further subdivisions हो सकती हैं, तो बार बार आपको मेन हेडिंग दोबारा देने की जरूरत नहीं है, उसी को दो में डिवाइड कर दिया, उसको बोलते हैं सब कैप्शंस. Columns and rows should be numbered for reference to facilitate comparison. A caption or a stub should be self-explanatory. It is necessary to give units of measurements wherever necessary with the stubs and captions in small brackets. Amount in rupees, weight in kgs. जहां भी requirement है वहां देना चाहिए. Stubs are at the extreme left and are usually wider than column headings. However, stubs should be kept as narrow as possible without sacrificing precision and clarity of statements. So caption and stubs, caption column heading को बोलते हैं, stubs row heading को बोलते हैं. Column मतलब vertical, ये क्या बोलते हैं, vertical columns की heading. रोज हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल. पार्ट्स ऑफ अ टेबल में टेबल नंबर, टाइटल, कैप्शंस, स्टब्स. नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द टेबल. सारा डेटा तो बॉडी ऑफ द टेबल में आता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल as it contains data, numerical information. Location of any one figure or data in the table is fixed and determined by the rows and columns. कहाँ वो place होगा, it depends कि वो क्या है, वो fix है, वो कहीं ऐसा नहीं कि कोई भी item कहीं भी place कर सकते हैं, वो specific जगह ही fall करेगा. The arrangement of numerical data in the main body is done from top to bottom in columns and from left to right in rows. Top to bottom in columns, left to right, तो top to bottom. और rows में कैसा होता है, left to right, ऐसे placement होता है, ये बोल रहे हो. The size and shape of the main body should be planned in view of the nature of figures and the objective of investigation. As body of the table reveals the whole story of the facts and findings of a statistical investigation, it is necessary to be careful so that irrelevant data does not find place in the table. The body of the table, it is the most important part of the table. So पूरा data है, उसको body बोलते हैं. Unit of measurement, the unit of measurement of the figures in the table should always be stated along with the title. If the unit does not change throughout the table, तो वो title के साथ ही आ जाएगी. लेकिन अगर उसमें columns हैं जिसमें different data है, different measurements हो सकती हैं, तो आप title के साथ measurement नहीं दे सकते. If there are different units for different rows or columns, then these units must be stated along with the rows and columns. In case of large figures, they should be rounded up and the method of rounding should be indicated. So method of rounding matlab rupees and crores, rupees and millions, rupees and billions, dollars. So method should be indicated. Head notes. In case the main title fails to convey complete information, a head note is also given in small brackets in prominent words just below the main title. Head note is inserted to convey all relevant information about the data. Head note, in case the main title fails to convey complete information, a head note is also given in small brackets in prominent words just below the main title. अगर main title से convey नहीं हो पा रहा कि क्या कहना चाहते हो इस टेबल के थ्रू, तो आपको फिर हेड नोट भी इंसर्ट करना पड़ेगा. एग्जाम्पल, कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स यूज्ड इन द टेबल आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन million rupees, in tons, and kilometers. Head notes are also known as prefatory note. Another name for head notes, prefatory note. Source note.
अ सोर्स नोट की जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, इसका सोर्स क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, और इट मे बी डेटा इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो भी है सोर्स क्या है? A source note refers to the source from which the information has been taken. Source note is given in case of secondary data. Secondary data already printed form, आपने खुद नहीं collect किया, already printed form में था, आपने कहीं से use करा है. The source should contain the name of the book, page number, table number, etc., from which the data has been collected. If more than one source is there, all the sources are to be written in the source note. Important point, mazadar point. If a reader desires to refer to the original data, the source note helps. कह रहा ये source है, ज़्यादा शक है तो check कर लो वहाँ पे, तो इसलिए source देना जरूरी है. Source note is generally written at the bottom of the table. For example, source note may be economic survey of 2018-19. Important source note, why is it important? Source note important चीज है. Why? पहली बात, it gives credit to the source, a person or group. तो हम ये दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे हमने कहीं से ये सारा डेटा इकट्ठा करा है. हम कह रहे हैं कि हमने कहीं से किसी और का कलेक्टेड डेटा यूज करा है. तो हम आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं आपको उससे भी बेटर वे में जितना उन्होंने प्रेजेंट किया था, बट यूज कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन. तो इट गिव्स क्रेडिट टू द सोर्स. It provides a reference to source material which may be more complete. कह रहा ये हमारी प्रेजेंटेशन है, आपको ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करना है, डेटा चाहिए एग्जैक्ट, तो ये सोर्स है. It provides some idea of reliability. अब मैं बोलूँ सोर्स में ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया या सेंसस ऑफ इंडिया, तो रिलायबल सोर्स है ना. अब मैं लिखूँ सोर्स में दैनिक भास्कर, कोई ऐसी कोई मैगजीन का नाम ले दूँ, तो फिर आप कहोगे अच्छा पहले बता देते, तो फिर हम आपको इतना सीरियसली ना लेते. तो सोर्स इज इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फुटनोट्स, फुटनोट्स तो ऑब्वियसली बात है ना, नीचे आएंगे. फुटनोट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टेबल. तो विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टेबल, क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल. फुटनोट, फुटनोट एक्सप्लेन्स द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द डेटा कंटेंट ऑफ द टेबल विच इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. कभी होता है ना हम स्टार लगा देते हैं और फिर नीचे स्टार की रेफरेंस दे देते हैं. तो इफ इट इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोई डेटा, तो उसके ऊपर हम कोई भी सिंबल, स्टार, डॉलर, कुछ भी एट द रेट लगा के नीचे एक्सप्लेन करते हैं. एंड एक्सप्लेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं था इसलिए. फुटनोट्स आर मेंट टू क्लैरिफाई एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर फ्रॉम द हेडिंग, टाइटल, स्टब्स और कैप्शंस. व्हेन देयर आर मोर देन वन फुटनोट्स, they are sequentially numbered. Footnotes are identified by symbols like asterisk, at the rate, or different symbols can be used. Footnotes are generally used for the following reasons: to point out any exceptions of the data, any special. अभी लिखा होता ना कि free, फिर लगा देते हैं स्टार, buy 4 get 1 free, तो पूरी कहानी बदल गई ना. तो कहते हैं मैंने स्टार में नीचे लिखा तो था कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. तो क्लैरिफाई, टू क्लैरिफाई एनीथिंग इन द डेटा. कह रहे रुको तो सही, देखो तो जरा, तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस पे काफी पॉइंट्स बन सकते हैं. पार्ट्स ऑफ अ टेबल, टेबल नंबर, टाइटल, कैप्शंस एंड स्टब्स. कैप्शंस कॉलम हेडिंग को बोलते हैं, स्टब्स रो हेडिंग को बोलते हैं. कैप्शंस हॉरिजॉन्टल, vertical, captions vertical, rows horizontal. Be careful. Body of the table, most important part of the table. Units of measurement देने हैं. Head note को prefatory note भी बोलते हैं. Source note देना चाहिए, reliability के बारे में थोड़ा पता चलता है. Footnote is the last part of the table. तो कैसी लगती है हमारी टेबल? सबसे पहले टेबल नंबर, फिर टाइटल. हेड नोट कब आता है? अगर टाइटल ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि क्या है डेटा, कुछ अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो आता है. कॉलम, कॉलम हेडिंग, कैप्शंस. अगर डिटेल रिक्वायरमेंट है तो सब हेड्स भी आते हैं, तो सब हेड्स भी आते हैं. रो, ये हैं रोज, 1 2 3 4, ये रोज हैं, तो रो हेडिंग.
फिर उसके अंदर एंट्रीज आ जाएंगी। कॉलम, ये 1 2 3 4 ये कॉलम्स हैं। तो ये बॉडी ऑफ द टेबल, सोर्स नोट आ जाता है और फुट नोट आ जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो सेक्स मेल फीमेल, रूरल एरिया में कितने हैं, इतने परसेंट, 69.67% मेल है, 44 डेटा है मेल्स। रूरल क्या कहना चाहते हैं, लिटरेसी, तभी वो पढ़ना जरूरी है ना कि हेडिंग की, क्योंकि वो 100% तो था नहीं, तो वो पॉपुलेशन तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए टाइटल इज इम्पोर्टेंट। टेबल नंबर, टाइटल क्या कह रहा है, लिटरेसी इन बिहार। तो इन रूरल एरियाज 69.67% मेल आर लिटरेट और 44.3% फीमेल्स आर इलिटरेट। तो डेटा हो गया, तो टाइटल इज इम्पोर्टेंट, वरना हम सोचते रहते कि कहना क्या चाहते हैं। तो रूरल एरियाज, अर्बन, ये क्या है, ये है कैप्शंस, ये क्या है, स्टब्स। तो स्टब एंट्रीज, रो एंट्रीज, ये लोकेशन रूरल अर्बन, ये सब है कॉलम, लोकेशन कॉलम हेडिंग हो गई, रूरल अर्बन आपके सब हेड्स कैप्शन के हो गए। तो इंपॉर्टेंट है, जस्ट रीड वंस एंड ये लिख के याद करने वाली चीज है, पार्ट्स ऑफ अ टेबल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।